start the meeting. I will be your translator today. So anything you will say, just take a pause, and I will try to explain this to the audience. The maximum audience with us, they do understand English, but yeah, they are not. Maybe they not. There might be some friends who are not very good in the English, so I will be translating. So you can start the presentation, and I will be your translator. Please welcome. You can on your camera as well. Yeah. Hi guys. Thank First of all, I want to thank you, all of you who joined our session today. I'm Maria, and I'm part of the business development and marketing team on Exchange On. So my co-host is Mr. Zim, senior at Exchange On, and today we would like to talk about several topics. जी उन्होंने अपना तारुफ कराया, इतना तो मेरा ख्याल है आप सब समझ गए होंगे, लेकिन बताते हम क्या ग्लोबल रीच है, उसके लिए थैंक यू. So first of all, we would like to talk about the foundation of the blockchain. Let's say this is like the basic knowledge of that. Then we slowly flow to the how it works in terms of BTC and Ethereum. And then we move our discussion to the different types of trading. जी तो आज का जो टॉपिक जी सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी थोड़ी आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है आपकी आवाज. जी सर करेंगे टॉपिक, इसलिए जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इनकी डिफरेंट है, हम उन टाइप पे बात करेंगे जिनके जरिए से एक्सचेंज ऑन के ऊपर आर्बिट्राज काम करते हैं. Okay, so first of all, I'm sure. जी हीरालाल जी मैं करता हूँ इम्प्रूव. थैंक यू. Okay, yeah. So probably almost all of you already know what a blockchain is, but let me remind you about that. So first of all, blockchain, it's a distributed database shared across multiple computers around the world. So all data is public, and once the data is recorded, it cannot be changed. जी ये कह रही हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के बारे में अवेयर हैं, ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं, और उससे आगे की कुछ चीज़ें जो है वो आज के दिन में डिस्कस करेंगे. मेरी आवाज़ का बताइएगा, मैंने काफ़ी इम्प्रूव की है. यस बिल्कुल अच्छी है सर. यस चले ठीक है, थैंक यू. बिल्कुल जी प्लीज मैरी. Yeah. So as I mentioned before, that's all the data is public, and once it's recorded, it cannot be changed. So you can just imagine that it looks like a notebook for everyone that can read this information, but no one can erase it or rewrite it. So each transaction, or like the part of the transaction with the data, stored as a block that linked with the previous block one. So mainly this is called the blockchain. जी अब ब्लॉकचेन की थोड़ी डेफिनेशन की उन्होंने कि आप इसको आसान लफ्जों में समझना चाहें तो आप ये समझिए ये एक ऐसा डाटा है या एक ऐसा समझ लेजर है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता. यानी उन्होंने कहा कि आप समझिए कि एक ऐसी किताब है, एक ऐसी नोटबुक है जिसमें आप लिख पाते हैं. आपने लिख दिया, जब एक दफ़ा लिखा गया तो फिर सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता. और ये इसकी जो है वो अगर डिजिटल फॉर्म में बात करें तो ये डाटा के पैकेट्स या डाटा के ब्लॉक्स बनते हैं, और हर ब्लॉक में पिछला ब्लॉक इंक्लूड होता है या लिंक्ड होता है. यानी ये नहीं हो सकता कि किसी एक ब्लॉक को पकड़ के छेड़खानी की जाए, क्योंकि वो पिछले तमाम ब्लॉक्स से लिंक करता हुआ आ रहा है. यानी आप अगर सोचें थोड़ी देर के लिए, तो अगर 2 लाख ब्लॉक्स हैं अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉकचेन के, तो जिस 2 लाख नंबर के ब्लॉक में आप मौजूद हैं ना, आप सिर्फ उसको उसके साथ उससे पिछले ब्लॉक में कुछ नहीं कर सकते. यानी 1,99,999 ब्लॉक सेव हैं, क्योंकि आप आखिरी वाले ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं. और ये एक जो है वो इसकी खूबसूरती है कि ब्लॉकचेन, इसलिए ये ब्लॉकचेन भी कहलाती है, क्योंकि ब्लॉक करके वो डाटा महफूज होता है. जी
Yes, Mary. So this structure, now we're moving to the, let's say, key features or main pros of the blockchain. So this structure makes blockchain secure and transparent. This is why people call it trustless. So you have to trust like a middleman or some company. You trust the system. जी, मारिया ने कहा कि कुछ फायदों पे, मेन फीचर्स पे बात करते हैं ब्लॉकचेन के, जिनमें से सबसे पहला फायदा ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। यानी आपको चीज़ें आपके सामने, जैसे आपको पता है ना ऑलरेडी कि जब हम ब्लॉकचेन पे देखना चाहें तो हम देख पाते हैं। अक्सर हमें कोई बंदा कहता है यार मैंने तो ट्रांजैक्शन कर दी, तो हम उसे कहते हैं कि ट्रांजैक्शन हैश भेज दो, तो हमें पता चल रहा होता है वो ट्रांजैक्शन हुई कि नहीं हुई। आप इसको कंपेयर करें एक बैंक से, एक बैंक में आपने ट्रांजैक्शन की है, अगले बंदे को पैसे नहीं पहुंचे। ऐसे अक्सर होता है कि आप ए बैंक से बी बैंक में कर रहे हैं, जब आपने पैसे भेजे यूजर को पहुंचे नहीं, आपका बैंक कहता है हमने भेज दिए, उसका बैंक कहता है जी मुझे मिले नहीं, आप बीच में फंसे होते हैं। पर यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी है, एक आम यूजर देख पा रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन हुई थी और अगर सक्सेस दिखा रहा है तो मिल गए हैं, कोई दुनिया में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसपेरेंसी उसका एक मेन फीचर है जी। यस मारिया। So, and I mark the most I mark the 4 key features. First of all, this is a decentralization. So no single authority controls the data. The second one is transparency. So everyone can verify the transaction via Explorer. So you can check the transaction, see from what wallet to what wallet, what sum was sent. The third, it's, let's call it immutability. You know, like as I mentioned before, once data is written, information cannot be changed. And the last one, it's security, because these, let's say, cryptology projects, the data that can be, you know, like changed again. So this like the most important pros of the blockchain itself in terms out of crypto. जी, और ये कहती है कि जो आपका ब्लॉकचेन है उसके अंदर, अच्छा मैं सबसे पहली बात ये करूंगा कि ये टॉपिक हो सकता है कि आपको आज के दिन में इन टॉपिक्स में ऐसी चीज़ें पता लगें जो आपको पहले से पता हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे, आप सीखना शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पे आज आपके लिए इनकी आवाज़ या इनका अंदाज नया हो सकता है, टॉपिक नया है, लेकिन अगले टॉपिक में, अगले सेशन में, उससे अगले सेशन में ये चीज़ें आपको बड़ा आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। वापस आते हैं ट्रांसलेशन पे। वो ब्लॉकचेन के बारे में कहती हैं कि इसमें एक और खूबसूरती है, वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है। इसमें कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जो डाटा को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए से ये प्रोटेक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है उस डाटा को प्रोटेक्ट करना। और साथ ही इन्होंने कहा कि इसकी अगली खूबसूरती यही है, इसी वजह से, क्योंकि एक बंदे का कंट्रोल नहीं होता तो कोई एक इसकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। यस प्लीज। सॉरी, वन थिंग, 1000 लोग, देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ 1000, तो अभी 1000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो अगर आप नहीं सुन पा रहे तो YouTube के ऊपर या ऑफिशियली शेयर हुआ होगा या अनऑफिशियली किसी चैनल पे है, तो आप जरूर वहां पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यस प्लीज कैरी ऑन। And now we can move to the part of the cryptocurrency, because today blockchains are used for trading, NFTs, supply chain, even for voting system. But the most interesting part for us, this is a technology that was used in terms of cryptocurrency like Bitcoin and Ethereum. जी, आज जो ब्लॉकचेन है उस पे मल्टीपल चीजें हो रही हैं, NFTs क्रिएट हो रहे हैं, टोकन्स क्रिएट हो रहे हैं, जो है वो डाटा की बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑलरेडी कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट जो है उसकी टोकनाइजेशन हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मेनली जो है इसकी पॉपुलैरिटी और इसके साथ जो हमारा कनेक्शन है वो ये है कि इस ब्लॉकचेन की मदद से क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस भी चलती हैं, ट्रेडिंग भी सारी की सारी इसी ब्लॉकचेन की मदद से होती है। यस प्लीज। Yeah. So as you already know that Bitcoin was the first token on the blockchain that was launched in 2009, and its main purpose was digital money. So borderless payments without banks and no control at all.
And another token that was launched much later, it was Ethereum. And mainly Ethereum was option to expand blockchain, like use beyond payments. It allows developers to build like smart contracts and different decentralized application, so which opens like more doors for using crypto on the blockchain. जी, उन्होंने तारुफ कराया कि ब्लॉकचेन पे जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी इट वाज बिटकॉइन, और जो 2009 में शुरू हुआ उन्होंने कहा, और जो है वो उसके लोगों ने ट्रांजैक्शंस की डिसेंट्रलाइज थी। तो ये एक जो प्रोडक्ट है पहला बिटकॉइन है, और उसके बाद मल्टीपल करेंसीज जो हैं वो हमने देखी यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर। यस, and so today we have like thousands of the blockchains and tokens built on this technology. So, and each blockchain or token serving different purposes. So from finance to gaming to maybe supply chain and digital identity. And mainly we want to talk about like how this ecosystem influence on the digital trading. So as you already know, that's most common usage of experience. This is like a daily trading on exchanges like Exchange On. So now we move to the topic about different options on the crypto trading. ओके, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करते हुए अब हजारों लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर जो ब्लॉकचेन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा कि हम तस्करा करते रहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी डाटा आएगा वहाँ पर, मिसाल के तौर पे बैंक्स भी ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। वोटिंग सिस्टम के अंदर अब ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है, क्यों? क्योंकि वो खूबियाँ, ट्रांसपेरेंसी और देखा जा सके। यानी आप किसी अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालते हैं, आप सब इससे आगाह हैं, जब वोटिंग होती है तो आपको फिर भी कहीं ना जितने भी ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों दुनिया के किसी भी कंट्री में, एक डाउट रहता है कि पता नहीं मैंने जो वोट डाला था वो गिनते हुए उन्होंने कहीं और ना डाल दिया हो। तो ऑनलाइन वोटिंग, और वो ऑनलाइन वोटिंग के अंदर अगर ब्लॉकचेन इन्वॉल्व कर दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक एक वोट वेरीफाई होगा, कि जिस तरह टोकन का पता लगता है ना कि यार किसने किसको भेजा था, इस तरह ये भी पता लगेगा कि किस यूजर ने, वोटर ने किस कैंडिडेट को वोट डाला था, गिनना आसान हो जाएगा। तो ये दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ हो रही है, और लेकिन मेनली यूज़ या जो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है कि ये ट्रेडिंग के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रही है। एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है, उसमें भी ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है, जैसा कि एक्सचेंज ऑन एक एक्सचेंज है जिस पर जब ट्रेडिंग होती है तो उसमें भी ब्लॉकचेन इन्वॉल्व है। यस प्लीज। So I would love to start with a plan. So we discussed like 5 main trading types, like futures, margin trading, copy, sport, and arbitrage trading for the final, where we discuss how arbitrage trading is working on Exchange On. And I would love to start with the most risky strategy, like futures trading and margins trading, to refresh our knowledge about that. जी, तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। स्पॉट में ट्रेडिंग की जाती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है। जो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते उन्होंने ये नाम ज़रूर सुने होंगे। उन्होंने कहा आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है, उन्होंने कहा कि कॉपी ट्रेडिंग होती है। मल्टीपल जो है वो ट्रेडिंग की टाइप्स हैं, और हम, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो आज आप सीखेंगे कि ट्रेडिंग की टाइप्स हैं और उनमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। तो ये स्टार्ट करेंगी सबसे पहले फ्यू मार्जिन ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करना। यस प्लीज। I would love to start with the margin trading. I know some people think that futures trading is much more risky, but I consider the margin trading the most risky trading option. So as you already probably heard about that, then you trade like a margin. First of all, you borrow money from the exchange, not only lose your money, but yeah. So, and you already have strategy. The next one, it's a futures trading.
This kind of risky, but less because you don't borrow money from the exchange. Mainly, you just enter a contract to speculate on the future price of crypto, and usually with leverage. जी, ट्रेडिंग की जो दो किस्में हैं, जिसे मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं, ये दोनों थोड़ी-थोड़ी अलग हैं, थोड़ा सा फर्क है इनमें। फर्क बता रही है कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आप एक्सचेंज से कुछ बोरो करते हैं, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, और इसलिए वो ज्यादा रिस्की है, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं जिसमें आपके पास लिवरेज होती है, आप सिर्फ लिवरेज ले रहे होते हैं, और वो लिवरेज जो है वो आपके प्रॉफिट और लॉस पे इम्पैक्ट डालती है। यानी इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ कि अगर आपने 1 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं और आपने 10 रुपए का मार्जिन ले लिया है, तो उसका फायदा और नुकसान बराबर ये होता है कि अगर कॉइन की प्राइस में छोटा सा फर्क आएगा तो वो 10 रुपए के हिसाब से आएगा, वो 1 रुपए के हिसाब से नहीं आएगा। फायदा भी होगा तो 10 गुना, नुकसान भी होगा तो 10 गुना। लेकिन इसके बावजूद वो कह रही हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग, उसमें थोड़ा सा कम रिस्क है, बट बोथ आर रिस्की। Yes, please. And now we are moving to the, let's say, medium risk trading. I would put on this place copy trading. Mainly, it's automatically copy trades of professional traders. So you just register in a crypto exchange, choose one of the top traders, and copy their strategy. If the trader earns some money, you also earn. If the trader loses, you also lose. I think this is kind of like a tricky that might go wrong. So this is like less control on your side. जी, और ट्रेडिंग की एक किस्म जिसे कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं, ये कॉपी ट्रेडिंग सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि आपको किसी एक ऐसे आदमी को कॉपी करना है जो अच्छी ट्रेड करता है, एक ऐसा यूजर, एक ऐसा ट्रेडर जो अच्छी ट्रेड्स करता है। आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है और उसको कॉपी करना होता है। आपके लिए ये कंपैरेटिवली लेस रिस्की है कि आप एक अच्छा बंदा फॉलो करें जो प्लेटफॉर्म कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने देखा है बहुत सारी एक्सचेंजेस ये प्रोवाइड भी करती हैं कॉपी ट्रेडिंग का फीचर, कोई अलग से प्लेटफॉर्म भी है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये लेस रिस्की है फ्यूचर्स करने की निस्बत कंपैरेटिवली। क्योंकि आप जब किसी बंदे को कॉपी करते हैं, कॉपी करने का मतलब है कि आप कहते हैं जो ये ट्रेड करता है मेरी भी वो हो जाए, तो आप उससे पहले क्या करते हैं, उसकी रेटिंग और रिव्यू देख लेते हैं। आप देखते हैं कि ये बंदा 3 साल से ट्रेड कर रहा है और इसने हर महीने इतना प्रॉफिट बनाया है या इतना लॉस किया है या इतनी ट्रेड्स की हैं, उसके बारे में रिव्यूज पढ़े हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं इस बिना पे। तो ये कंपैरेटिवली लेस रिस्की है, लेकिन ये भी थोड़ा ट्रिकी है। इट इज नॉट ऑलवेज कि आप पैसे कमाएंगे। बाजुकात अगर उसने कोई गलत फैसला कर दिया तो उसके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, आपके पैसे भी जाएंगे। लेकिन फिर भी ये है कि फ्यूचर्स वाली मेहनत बच जाती है और आप किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को फॉलो करके अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकते हैं इससे, कॉपी ट्रेडिंग से। यस प्लीज। And the last two less risky trading strategy, it's a spot trading. That's probably most of us used as we start our trading. Mainly you register on a crypto exchange, you buy or sell crypto at current market price, you own them assets like immediately, and you can hold it as long as you want. So this is when some people call like hodlers, we just buy Bitcoin and waiting, then it's going up and we sell that. जी, और ट्रेडिंग की जो तीसरी किस्म है या जो स्पॉट ट्रेडिंग है, ये सबसे लेस रिस्की है क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको एक क्रिप्टो को बाय करना होता है और फिर आप उसको उस वक्त तक रखते हैं जब तक आपको उसके अंदर कोई प्रॉफिट या हाई प्राइस नहीं मिलती। आपने 2 रुपए की चीज ली, आपको जब तक वो 2.25, 2.5, 3, 4, 5 रुपए की नहीं होती, आप रख सकते हैं और रखने पे कोई चार्जेस नहीं पड़ते। नॉर्मली जब हम फ्यूचर्स वगैरह की बात करते हैं तो हमें फंडिंग फी और इस तरह की चीजें होती हैं जो हमें पे करना पड़ती हैं और हम होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर आप क्रिप्टोस के अंदर जब किसी एसेट को बाय करते हैं तो आप होल्ड करते हैं। यहाँ आप होल्डर भी बनते हैं और होल्डर भी बनते हैं। इसको एक दफा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका था। होल्डर तो मतलब है आपने 2, 4, 10 दिन रखी तो होल्डर है, और जो होल्डर है दैट इज लाइक के लंबी होल्डिंग है आपकी। आप एक डाई हार्ट फैन है और आप कहते हैं यार मैं होल्ड कर रहा हूँ, तब आप होल्डर कराएंगे क्योंकि आपको एक लंबे अरसे के लिए उस क्रिप्टो को रखेंगे। जैसे बिटकॉइन में हमें ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं, पीपल आर होल्डिंग फॉर लॉन्ग टाइम लाइक 5 ईयर 10 ईयर, दे आर कंसिडर्ड होल्डर्स, उनको होल्डर कंसिडर किया जाता है। यस प्लीज।
Okay, and the last and the less riskiest trading strategy, this is arbitrage strategy that we offer at our exchange. How the arbitrage trading works, mainly you just got profit from price difference of the same token, but just from the different exchanges. The one thing that this is required, this is like a speed, how fast you can see the difference price between different exchanges, and like to make sure that you do this with the low fees. This is where I would love to talk a little bit more about our crypto arbitrage exchange trading bot. जी, और उन्होंने कहा जो सबसे कम रिस्क वाली होती है वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है, जिसको कि एक्सचेंज ऑन पे अभी आर्बिट्राज का बॉट यूज कर रहा है। लेकिन वो कहती है कम रिस्क वाली क्यों होती है, क्योंकि इसमें आप फायदा उठाते हैं। दो एक्सचेंजों पर कीमत का फर्क होता है, नॉर्मली थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। तो आप एक एक्सचेंज से खरीद के इमीडिएटली दूसरी एक्सचेंज पे बेचते हैं, इस वजह से इसके अंदर कम रिस्क होता है। यानी इसको अगर मैं देसी या एक अपनी सादा जुबान में समझाना चाहूं तो एक बंदा है जो जूतों का बिजनेस करता है, उसको एक फैक्ट्री ऑफर करती है कि आप हमसे जूते ले लें 100 रुपए पर पीस के हिसाब से, और उसको एक दुकानदार ऑफर कर रहा होता है कि मुझे 101 रुपए की दे दें, बेशक मेरे से अभी पैसे ले लें। तो ये एक बिल्कुल लमसम सा डील बनती है कि ओके, मैंने ना शोरूम पे रखने हैं, ना मैंने मार्केटिंग करनी है, ना मैंने किसी और तरीके से बेचने हैं, वहां से 1 लाख जूते उठाने हैं और वहां पहुंचा देने हैं, और वहां से शायद पहले ही पेमेंट एडवांस में आ जाए। तो आर्बिट्राज भी इसी तरह काम करती है, लेकिन मैरी कहती हैं कि इसमें जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो कितना, वो स्पीड पे डिपेंड करते हैं कि कितना फास्ट आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्योंकि जिस ट्रेड आपकी नजर पड़ी है, जिस डिफरेंस को आपने देखा है, हो सकता है दूसरा भी कोई आर्बिट्राज करने वाला इंसान या बोट उस ट्रेड को देख रहा हो। तो अगर आपके पास स्पीड ज्यादा है तो वो ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर जाएंगे, वो मुनाफा आप कमा पाएंगे आर्बिट्राज ट्रेडिंग के जरिए। यस प्लीज। So, and if we're talking about arbitrage trading with exchange on, I would say that we offer simple, very simple, like for newbies, automated and low risk way how to do arbitrage trading. Because we have our bot that's called Kranti, and it includes AI mechanism in that. So mainly this bot does, let's say this, like this hard work of checking this price difference of the same token from the different exchanges. So this bot does it instead of you. And this method, as I mentioned already before, this is like the safest method that you can trade in terms of all other traditional trading methods. जी, तो यहाँ पर मैरी कहती हैं कि एक्सचेंज ऑन के अंदर जो फीचर मौजूद है आर्बिट्राज ट्रेडिंग का, ये बड़ा एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो न्यूबीज हैं। न्यूबीज का मतलब होता है किसी फील्ड में जो नए लोग आए हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं जानते, जिनकी जो रिस्क एपिटाइट है वो कम है और उनको बहुत ज्यादा चीजों का पता नहीं है, उनके पास रिसर्च नहीं है, तो वो इससे फायदा उठा सकते हैं कि यहाँ पर जो बोट है जिसे हम क्रांति के नाम से जानते हैं, ये आर्बिट्राज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड एक बोट है जो खुद फैसले भी करता है। यानी एक है कि आप कोई कमांड देकर कहें बस ये करते रहो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो खुद कभी फैसला कर लेता है कि ये ट्रेड छोड़ देनी चाहिए, मुनाफा बहुत कम है, या ये ट्रेड लेने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा क्योंकि यहाँ मुनाफा ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बोट है जो अच्छे फैसले खुद कर सकता है, अच्छे या जिस तरह के भी फैसले करने हैं खुद कर सकता है। उसको ट्रेंड किया गया है और उसको मुसलसल ट्रेंड किया जा रहा है, उसकी गलतियों पे उसको सिखाया जा रहा है। तो ये फायदा ये है कि ये जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है, इसको हमने समझा कि ये आम आदमी भी करे तो लेस रिस्की है, मगर वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मल्टीपल एक्सचेंजेस पे उसके पास ये स्पीड वाला फीचर नहीं होता। मगर यहाँ पर क्रांति बोर्ड मौजूद है जो जिसके पास स्पीड भी मौजूद है और जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और इस आर्बिट्राज का फायदा न्यूबीज के लिए बहुत ज्यादा है
जो पहले ट्रेड नहीं किया जिन्होंने, वो इसकी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं. यस प्लीज. And let me share, let's say, a few insights how it works. So first of all, our bot scans, I think, more than 35 crypto exchanges around all world and in real time. So you don't miss that great opportunity. Also, it finds price gaps for, for most profitable coins or tokens. Also, our bot allows to trade more than 2,000, if I'm not mistaken, crypto assets around all the crypto markets, and it automatically locks it in profit. जी, बोर्ड के बारे में बता रही हैं कि बोर्ड है वो 35 एक्सचेंजेस के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी 35 एक्सचेंजेस के ऊपर अगर कोई प्रॉफिटेबल पेयर्स निकलेंगे तो उनमें वो जाएगा और वो ट्रेड कर सकता है. उसके पास कैपेसिटी है कि 2000 ट्रेडिंग पेयर्स में वो ट्रेड कर सकता है. वो करता है या नहीं करता, या उसको उसमें दूसरे टोकन्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन वो 2000 ट्रेड्स में 2000 टोकन्स के पेयर्स में या कॉइन्स के पेयर्स में ट्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है. तो जहां उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं वहां पर वो ट्रेड करता है. और ये है इस बोट के बारे में कि जो आर्बिट्राज बोट है यहाँ पर एक्सचेंज ऑन के अंदर वो 35 एक्सचेंजेस और 2000 पेयर्स के अंदर ट्रेड कर सकता है. यस प्लीज. And let me explain how it works for the users. This is pretty simple. You just go to our website, exchangeon.io, click on the registered button. Register is absolutely similar process like for any other crypto exchanges. Set up your account. Please remember about the security. Also set up 2FA authentication, so you make sure that you are totally safe. Then please finish the KYC process. Usually it takes around 2 or 3 minutes to finish it on our crypto exchange. And the most interesting part, how you could do that, you should just choose any package available on our platform. Currently, we have 2 packages for the arbitrage trading that you purchase. Click to the subscribe button. Click there is a button like start the bot, and that's it. You don't need anything, let's say, specific knowledge of the trading. This bot will start trade instead of you. जी, वो बता रही हैं किसी भी नए यूजर के लिए, वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, आप जानते हैं कि साइन अप करते हैं, आप केवाईसी का प्रोसेस करते हैं, और आपको कोई ये न्यूबीज के लिए है कि आपको कोई टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, बल्कि आपको जस्ट जो है उस बॉट की सब्सक्रिप्शन लेनी है. आप उस बॉट की सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, बॉट ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है. तो ये एक खूबसूरत बात है. इससे ये है कि नॉर्मली तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर एक्सपर्ट्स जाते हैं, लेकिन एक्सचेंज ऑन के ऊपर वो तमाम लोग जो नए भी हैं इंडस्ट्री में वो आ सकते हैं. यानी जिस तरह कॉपी ट्रेड काम करती है कि यार आप एक ट्रेडर को फॉलो करते हैं, वो आपका नफा भी करा सकता है, आपका नुकसान भी करा सकता है. आप एक ट्रेडर को फॉलो करते हैं, वो आज आपके लिए $100 कमाता है, कल 200 कमाता है, तीसरे दिन अगर वो अपनी ट्रेड लूज कर गया तो आप भी लूज कर जाएंगे. लेकिन बोट सेंसिबली ट्रेड करता है, उसमें जज्बात नहीं है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि बॉट्स के अंदर सेंटीमेंट्स नहीं होते. आपको पता है ना, मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है कि हम लोग जो हैं, इंसान जब ट्रेडिंग करता है तो उसमें लालच भी आ सकता है, उसमें खौफ भी आ सकता है. ये हमारा वीक पॉइंट है. दिमाग हमारा जितना भी एक्सीलेंट हो, लेकिन हमारी एक कमजोरी है. वी आर ह्यूमन बीइंग. हम जो है वो लालच में भी आ सकते हैं, फियर में भी आ सकते हैं और ग्रीड में भी आ सकते हैं. इसलिए हम कभी गलत फैसले भी कर जाते हैं. बॉट को वही करना है जो उसको बेहतरीन लगेगा. वो किसी लालच में नहीं है. देखिए, अगर वो आपका लॉस कर देगा आप उसको डांट नहीं सकते. एक कंपनी का अगर वो लॉस करता है, कंपनी उसको डांट नहीं सकती. वो अगर उसका प्रॉफिट करता है तो वो तालियां भी बजाएगी, तो उसको इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. तो वो इंटेलिजेंटली बॉट ट्रेड करता है और अपने कैलकुलेटिव रिस्क जो उसको ट्रेंड किया गया है उसके मुताबिक वो फैसले करता है. यस प्लीज. And also, I think I didn't mention one very important thing. Okay, you don't need technical trading skills. You already set up your account. You purchase the subscription. And maybe the next thing that you're thinking
are we borrowing something or anything? No, there is no borrowing from the exchange or using leverage. This means that your position won't be wiped out by a sudden drop or rise. So this is very, very safe for you to start your trading and very easy to set up. जी, इन्होंने कहा कि जिस तरह हम फ्यूचर्स या इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें प्राइस में सडन चेंज आता है और अकाउंट ही वाइप हो जाता है या हम लिक्विडेट हो जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, मगर यहाँ पर जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग के अंदर और एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज बोर्ड के जरिए जब आप ये ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें कोई आपका वो रिस्क नहीं होता कि आपका अचानक अकाउंट जीरो हो जाए, बल्कि वो एक पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए वो आपके लिए कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करता रहता है। यस प्लीज। I think this was the main thing that I would like to tell you about during this session about the Blockchain Foundation and our bot. Maybe you have any specific questions that you would like to ask us. We will be glad to answer them. And also, I would like to remind you to check our website, exchangeon.io. Try to register, see how it works, and test our bot. And also, please follow our social media. We can send it here on chat if you want. And follow XDEMI social media as well. We could send this link here in chat. I can do it, just give me a few minutes. Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you very much. वो कह रही हैं कि जो है वो अच्छा उनको उनके ख्याल में शायद यहाँ पर हमारे साथ न्यूबीज भी मौजूद होंगे। ये इनको हम बता देंगे कि ज्यादातर हमारी मीटिंग्स के अंदर हमारे वो यूजर, हमारे वो दोस्त भाई लीडर्स आते हैं जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, और साथ उनकी ख्वाहिश है कि आप एक्सचेंज ऑन के सोशल मीडिया को भी फॉलो करें। और उसके पीछे रीजन यही है कि जब आप ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज शी इज वर्किंग ऑलरेडी इन द PR एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो उनकी ख्वाहिश ये है कि मैक्सिमम लोग फॉलो करें ताकि इससे सहूलत मिलती है। आपकी एक्सचेंज की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए सोशल मीडिया फॉलो करें, एक्सचेंज ऑन के भी फॉलो करें और एक्सडेमी के भी फॉलो करें, ताकि एक्सडेमी के जरिए से भी ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में बल्कि अपनी कम्युनिटी से बाहर भी लोगों को एजुकेट किया जा सके। जो लोग एक्सचेंज ऑन का हिस्सा नहीं भी हों वो भी ये कह सकें कि हम एक्सडेमी से कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है। तो लिंक्स उन्होंने शेयर कर दिए हैं चैट के अंदर। आप चैट के अंदर से उन लिंक्स पे एक्सडेमी के सोशल मीडिया पे और एक्सचेंज ऑन के सोशल मीडिया पे जाके उनको लाइक कर सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी तरफ से इतना ही है, अगर किसी के पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आज इनका पहला सेशन है, क्वेश्चन हम पूछ भी सकते हैं अगर पूछना चाहें। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, जो मैं इनसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, are you going to participate in the Crypto Expo 2049 in Singapore? Yes, I will be there. We have Mary, are you going to participate? Yes. Yeah. Okay. We have the booth on, I think, 4th floor. And it will be a big booth, so you definitely will meet us there. Okay, and what will be the activities when you will be there on the booth, and what we are expecting from this expo? Is there some recognition we will get, and how is going to be the results for this participation in expo? Yes, first of all, we would like to meet our main users there, to share how our bot works. Another step, maybe you already checked our social media, like Twitter. Maybe you saw the last post about our, let's say, smart watches interactive. So I hope you will join our stage and try to win this prize. I will send you the link to the post so you can check it and to be prepared. And these will be gifts, the smartwatches? If I'm not mistaken, yes, but you definitely have to do some activities with us. And okay. It's not like that, just come to the counter and take the smartwatch and go. No, you need to participate a little bit. You need to try to play with our bots. But this is like a totally fair game. So, yeah. Okay, that's great. So, thank you very much for the session. It was a very good and healthy session with you. And we do expect that in future we will have more sessions like this on different topics like this, which are related to exchange on and cryptocurrency and trading and blockchain as well, right? Yeah, definitely. If you have any suggestions, you can leave
the ideas of the topic under our Twitter posts. We definitely see them and check, maybe send to our email, info@exchangeon. I think this was the correct email. We also check it and maybe choose one of the topics, and we'll talk about that next time. Alright, thank you very much. वो कह रही हैं कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे डिस्कशन करना चाहें इन सारे टॉपिक्स में, एक्सचेंज ऑन, आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्पॉट और ट्रेडिंग टाइप्स, ब्लॉकचेन, फ्यूचर यूजिबिलिटीज टाइप, इस तरह की कोई चीज, तो आप एक्सडेमी पे जा करके जो उसके सोशल मीडियाज हैं उन पे जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक ईमेल भी बताया है, उस ईमेल पे शायद रिस्पांस ना मिले, आप जानते हैं शायद, लेकिन यह है कि आप एटलीस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर जा करके कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आप सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, आई विल कन्वे योर मैसेज, और आप डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जब सेशन करें तो किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें। और आप लोगों ने इसको जो है वो पूरे सीरियस नोट पे इस तरह से लेना है, क्योंकि हमारे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि हम एक दूसरे का फायदा करवाते हैं, एक दूसरे का भला करवाते हैं। आप जानते हैं इस चीज को कि हम बाज़ औक़ात जो है वो बगैर मतलब के भी दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। तो हम इस एजुकेशन को, इस एक्सडेमी को, अगर अच्छे टॉपिक्स आएंगे, अगर हम अच्छा समझना शुरू करेंगे, तो हम इसको पूरी दुनिया में, अभी इंग्लिश का ये फायदा हो गया ना कि हम फ्लो शायद नहीं बन पाता, मोटिवेशन शायद उतनी नहीं आ पाती, लेकिन कम से कम मैसेज कन्वे होता है। और जिस तरह मैरी हमारे साथ हैं इस वक्त तक, अभी तक मैं बताऊं तो शायद 7 से 8 जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। तो हम डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ इन सेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं कि हमारी वजह से लोग जो है वो इस इंडस्ट्री के बारे में जाने, वो एक्सचेंज ऑन का पार्ट बने ना बने, वो ट्रेडिंग में आए ना आए, डज नॉट मैटर, लेकिन ये है कि हम एजुकेशन जो है, अवेयरनेस जो है वो मैक्सिमम लोगों को दें। आपके पास ये मार्जिन होगा कि आपके पास जब एक्सडेमी का लिंक आए ना, आप उसको पूरी फोन बुक को फॉरवर्ड कर दें कॉन्फिडेंस के साथ। दिस इज नॉट ओनली अबाउट समथिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, बल्कि ये एक एजुकेशन पर्पस है जिससे कोई कुछ ना कुछ सीखेगा। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन इन द मीटिंग, एंड थैंक यू वेरी मच मैरी, थैंक यू सो मच एंड फॉर दिस मीटिंग, एंड होप टू सी यू इन सिंगापुर, and then we will do another session with the audience. So thank you very much. आप सबका भी शुक्रिया, and thank you Mary once again. Thank you too. Take care, bye bye. God bless you. और आप सबका बहुत शुक्रिया। Yes, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। Take care. जी मिस हिना, इस सेशन को आप एंड कर सकती हैं प्लीज, थैंक यू।